welcome to my class. Students, we are doing chapter 10, Microbes in Human Welfare. In our previous videos, we discussed the role of microbes in household products, role of microbes in industrial products, and role of microbes in sewage treatment. Today, we will discuss the role of microbes in biogas production. Students, biogas is an important solution to present energy crisis, especially in rural areas. ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਦਾ ਗੈਸ। ਹੁਣ ਬਾਇਓਗੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਗੈਸ? ਬਾਇਓਗੈਸ is also known as gobar gas. The gas produced by the action of bacteria on biomass in absence of oxygen is called biogas or gobar gas. Gas produced by the action of bacteria on biomass in the absence of oxygen is known as biogas or gobar gas. Now composition की है? बायोगैस जड़ी हैगी है वो किस चीज तो मिलके बनी हुई है? Of what the biogas is composed of? Biogas जड़ी है it is a mixture of gases. ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈसेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? CH4 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अमोनिया। बायोगैस जिहड़ी है उहदे विच मेन गैस जिहड़ी हैगी है दैट इज मीथेन। मीथेन जिहड़ी हैगी है इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस और 55 to 65% methane is present in biogas. 35 to 45% carbon dioxide is present in biogas. Hydrogen sulfide ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 to 1% is present. Nitrogen 0 to 1% is present in biogas. Hydrogen 0 to 1%. Carbon monoxide 0 to 3%. Oxygen 0 to 2% and ammonia traces। यानी कि मेन जेडी बायोगैस विच गैसेस प्रेजेंट हुंदियां दैट इज मीथेन इज मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 40% है। बाकी जेडियां गैसेस हैगियां दैट आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। बायोगैस जेडी है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स तो जिहड़े ऑर्गेनिक वेस्ट हैगी है जदों उन्हां दी एनारोबिक डाइजेशन हुंदी हैगी उदों बायोगैस प्रोड्यूस हुंदी है। हुण किहड़े-किहड़े प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट हैगी है जिन्हां तो बायोगैस बनदी हैगी है? एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है, जिहड़ी खेतीबाड़ी दी रहंद खूंद है। म्यूनसिपल वेस्ट जिहड़ा आ वो भी यूज हुंदा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। प्लांट मटीरियल, सीवेज, फूड वेस्ट, साडी किचन दे विचों जिहड़ा वेस्ट निकलदा है उहनूं भी असीं बायोगैस प्लांट्स दे विच यूज कर सकदे हां फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन आल्सो बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। एनिमल डंग, कैटल डंग जिहड़ी हैगी है वो भी यूज कीती जांदी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। नाउ माइक्रोब्स इन्वॉल्वड, किहड़े-किहड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैगे आ जिहड़े इन्वॉल्वड हैगे आ in the production of biogas? Microorganisms involved. Methanogens, particularly methanobacterium.
Methane producing bacteria are known as methanogens, particularly Methanobacterium. It anaerobically breaks down cellulosic material to produce large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen. ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਲੂਲੋजिक ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਐਨਏਰੋਬਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਗੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਅਸੀਂ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਐਨਏਰੋਬਿਕ sludge during sewage treatment। ਜਦੋਂ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਏਰੋਬਿਕ ਸਲਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦ ਰੂਮਨ ਆਫ ਕੈਟਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਥੈਨੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰੂਮਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟਮਕ। Most common methanogens are Methanobacterium and Methanococcus. Methanobacterium and Methanococcus ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are methanogens, methane producing bacteria. Now gobar gas plant गोबर गैस और बायोगैस प्लांट्स बारे ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे। गोबर गैस प्लांट्स और बायोगैस प्लांट्स जिथे बायोगैस प्रोड्यूस होंदी हैगी है। कैटल डंग इज abundantly available in rural areas। ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼। ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ बायोगैस प्लांट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਟੂ ਕਾਮਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਕਾਮਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਕਸਡ ਡੋਮ ਟਾਈਪ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ and second one is floating gas holder type biogas plant। Two most commonly used biogas plants in our country are fixed dome type biogas plant and floating gas holder type biogas plants। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮਸ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਕਸਡ ਡੋਮ ਟਾਈਪ ਐਂਡ ਫਲੋਟਿੰਗ ਗੈਸ ਹੋਲਡਰ ਟਾਈਪ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਡੋਮ ਟਾਈਪ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ ब्रिक्स एंड सीमेंट का बनया होंदा या ये डोम टाइप होंदा या उपरों और ये मिक्सिंग टैंक हैगा या मिक्सिंग टैंक दे विच स्लरी ऑफ कैटल डंग एंड वाटर एग्रीकल्चरल वेस्ट किचन वेस्ट पाया जाता हैगा या थ्रू इनलैट चैंबर ये डाइजैस्टर टैंक दे विच आउंदा या और मिथैनोजन्स प्रेजेंट इन द डंग जिहड़े आ ओह इनू कन्वर्ट करते हैगे आ डिकंपोज करते हैं बायोगैस प्रोड्यूस होंदी है एंड थ्रू आउटलैट हैगे जिहड़े पाइप्स हैगे उन्हां दे राही बायोगैस जिहड़ी हैगी है ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਦਾ ਹਾਊਸਿਸ ਫॉर ਕੁਕਿੰਗ ਪਰਪਸ ਐਂਡ ਟੂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਲੈਂਪਸ
एंड थ्रू द आउटलैट चैम्बर ओवरफ्लो टैंक दे विच स्पेंट स्लरी आउंदी हैगी आ विच इज़ यूज्ड एज अ मैन्योर इन द फील्ड्स। और सैकेंड बायोगैस प्लांट हैगा या फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट। दोनों फिक्सड डोम टाइप और फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਗੈਸ ਹੋਲਡਰ ਟਾਈਪ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਾਇਓਗੈਸ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਕਸਿੰਗ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲਰੀ ਆਫ ਕੈਟਲ ਡੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਲੈਟ ਫॉर ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈਪਸ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡ ਸਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰਫਲੋ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ यूज़ कर ली जाती हैगी है इन द फील्ड्स एज अ मैन्योर। सो ये दोनों टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट्स बारे सीगा। नाउ स्टूडेंट्स तुहानू डायग्राम्स तो क्लीयर हो गया होएगा। जिहड़े रॉ मटीरियल हैगा या फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर। इट इज़ रिच इन मिथेनोजन्स। ठीक है, जिहड़ा पशुओं का गोहा हैगा डंग ऑफ कैटल वो ज़्यादातर जिहड़ा हैगा या मेनली बायोगैस प्लांट्स दे विच यूज हुंदा हैगा या। एंड ये जिहड़ा डंग ऑफ कैटल नोन एज गोबर इहदे विच मिथेनोजन्स मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हुंदे है। एंड बायोगैस प्लांट जिहड़ा या इट कंजिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक। कंक्रीट टैंक मीनस मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट का बनिया होया टैंक हुंदा या 10 to 15 फीट डीप 10 to 15 फीट डीप होंदा या। ठीक है, और स्लरी ऑफ डंग एंड वाटर इज पुट इनटू द मिक्सिंग टैंक दे विच वाटर और डंग दी स्लरी जिहड़ी है वो पाई जांदी हैगी है ओदे विच। एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा ते बाकी एग्रीकल्चरल वेस्ट किचन वेस्ट भी ओदे विच मिक्सिंग टैंक दे विच पा दिता जांदा है। थ्रू इनलैट पाइप जिहड़ा हैगा या फिर वो डाइजैस्टर टैंक दे विच जांदा हैगा या। और जिहड़े डंग दे विच मिथेनोजन्स प्रेजेंट हुंदे आ मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जिहड़े हैगे आ दे एक्ट ऑन द बायो वेस्ट टू प्रोड्यूस बायोगैस। द बायोगैस प्रोड्यूस जिहड़ी वो हुण हैगी आ वो इट इज़ ड्रॉन थ्रू द पाइप्स राहीं वो लै लई जांदी हैगी आ ते हाउसिस नियर बाय हाउसिस नूं सप्लाई कर दित्ती जांदी है फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग परपस दे लई बायोगैस जिहड़ी आ यूज हुंदी है इन किचन्स टू कुक द फूड and to light the street lamps in order to get a continuous supply of biogas कि सानू लगातार बायोगैस जिहड़ी ओह मिलदी रहे ओहदे लई ये जरूरी हैगा कि जिहड़े बायोगैस प्लांट्स हैगे उन्हां दे विच रेगुलरली बायो वेस्ट जिहड़ा आ ओह अवेलेबल किया जाए। बायो वेस्ट डंग एग्रीकल्चर वेस्ट किचन वेस्ट जिहड़ा हैगा आ ओह लगातार ओहदी सप्लाई की जाए तां ही फिर लगातार बायोगैस जिहड़ा हैगा ओहदी सप्लाई सानू मिलेगी। और फिर की किया जाता जिहड़ा आउटलैट पाइप हैगा या ओहदे थ्रू स्पेंट स्लरी जिहड़ी हैगी आ ओह कलैक्ट कर लई जांदी हैगी इन द ओवरफ्लो टैंक। और वो जिहड़ी स्पेंट स्लरी हैगी आ इट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइज्ड मैन्योर खाद के तौर पर वो खेतों के विच यूज की जा सकती है। स्टूडेंट जिहड़ा फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट हैगा या ओहदे विच की हुंदा आ कि टैंक के उपर एक फ्लोटिंग गैस होल्डर हुंदा हैगा या। इट इज़ मेड अप ऑफ steel and it is placed over the slurry and it moves upward as the जब बायोगैस प्रोड्यूस होंदी है तो जो फ्लोटिंग टैंक है it moves upward। हुण असीं दो बायोगैस प्लांट्स बारे डिस्कस किया हैगा या फिक्स्ड डोम टाइप एंड फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट। हुण इन्हां दोनां विचों बैटर किहड़ा हैगा या फिक्स्ड डोम शेप्ड बायोगैस प्लांट इज बैटर दैन फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट। ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਸਟ ਲੋ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਕੰਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਆ ਐਜ਼ नो मूविंग पार्ट्स एग्जिस्ट। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ मूविंग पार्ट्स नहीं हैगी है। थर्ड हैगा आ कि कोई स्टील क्योंकि स्टील पार्ट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡੋਮ टाइप बायोगैस प्लांट ਵਿੱਚ यूज ही नहीं होंगे कंक्रीट ब्रिक्स एंड सीमेंट्स का बनया होंगे इसलिए नो रस्टिंग ऑफ स्टील टेक्स प्लेस जिस करके इस डोम शेप बायोगैस प्लांट की जिहड़ी लाइफ होंदी है वो लॉन्ग होंदी है 20 ईयर्स और मोर होंदी हैगी है। और
ये इट इज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड, ठीक है, जमीन के अंदर इनू बनाया जाता है या जिस करके इनू कोई फिजिकल डैमेज तो ਇਹਦਾ कोई नहीं ਹੁੰਦਾ है, डैमेज ਹੁੰਦਾ ਆ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ अंडरग्राउंड बनाउण ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ स्पेस हैगी आ वो भी सेव हो जाती है। सो स्टूडेंट्स ये तो दोनों बायोगैस प्लांट्स बारे हो गए। हुण ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ। बायोगैस प्लांट्स के की एडवांटेजेस है। फर्स्ट वन इज बायोगैस जिहड़ी हैगी है, बायोगैस प्लांट्स विच बायोगैस प्रोड्यूस होंदी है एंड बायोगैस जिहड़ी हैगी है इट कैन बी बर्नड इन गैस स्टोव्स। गैस स्टोव्स दे विच इनू बर्न करके हीट प्रोड्यूस की जाती हैगी है, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड हीट। Biogas can be burnt in gas stoves to provide heat. It can be used for cooking food. Food cook करने के लिए use होती है। It can be used in street lights for lighting purposes. It can be used for driving engines चलाउण दे लई ये गैस जिहड़ी हैगी है वो यूज की जाती हैगी है एंड इट बर्न्स विदाउट स्मोक। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, बिना धुएं तो ये जिहड़ी गैस हैगी है वो जलदी है कि जो बायोगैस जिहड़ी है जलदी है तो कोई स्मोक कोई धुआं पैदा नहीं करती हैगी है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, कोई स्मोक ना प्रोड्यूस करन करके एक ही हैगा इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन नु कंट्रोल करन दे विच भी है हेल्प करदी है। एंड द स्लरी लेफ्ट, जेड़ी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्लरी बचदी हैगी है बायोगैस प्रोडक्शन तो बाद, द स्लरी लेफ्ट in biogas plant after the gas is withdrawn, ठीक है, it is rich in nitrogenous and phosphorus compounds ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ काफी ज्यादा होंगे हैं जिस करके इट इज यूज्ड एज अ मैन्योर फर्टिलाइजर के तौर पे ये यूज होंगी है। जिहड़ी बायोगैस प्रोडक्शन तो बाद जिहड़ी स्लरी बचती हैगी है इट इज रिच इन नाइट्रोजीनियस एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ठीक है, सो इट इज अ वेरी गुड मैन्योर, इट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। सेवंथ है बायोगैस जिहड़ी हैगी है इट इज इको फ्रेंडली। It is renewable as well as clean source of energy. Biogas is renewable and clean source of energy. And eighth one is biogas is more safer than CNG. Biogas is more safer than CNG. compressed natural gas नालों ज्यादा सेफ हैगी है and 3 times more safer than LPG cylinder. After removal of carbon dioxide, hydrogen sulfide and water vapor, biogas can be converted into natural gas quality for use in vehicles. Vehicles de vich bhi a use hundi hegi hai. It is more safer than CNG and more safer than LPG cylinder. And biogas is the cheapest and never ending multi-purpose fluid. 9th point हैगा biogas is cheaper
एंड नेवर एंडिंग मल्टीपर्पज फ्यूल, कदी ना खत्म होने वाला मल्टीपर्पज फ्यूल के तौर पर भी यह यूज होंगी है, चीपेस्ट हैगी है, सस्ती हैगी है बायोगैस, ठीक है। एंड 10th पॉइंट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट्स दे विच ह्यूमन एक्सक्रीटा ह्यूमन फीसिस भी यूज किए जा सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंटल ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਾਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਅਨਮੈਨੇਜਡ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ এনवायरमेंटल ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ कई जड़े हैगे टॉयलेट्स नहीं यूज करते खुले दे विच शौच जाते हैगे ते जदों वही ह्यूमन एक्सक्रीटा जिहड़ा हैगा आ वो वाटर बॉडीज दे नाल वाटर दे नाल मिलदा आ वाटर बॉडीज दे विच जांदा आ ते उहदे नाल वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जांदियां हैगियां ते जदों ह्यूमन एक्सक्रीटा बायोगैस प्लांट्स दे विच यूज होएगा तो उहदे नाल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी घट जाणगियां ते एनर्जी भी बायोगैस जिहड़ी हैगी आ प्लांट्स दे विच प्रोड्यूस हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये 10 एडवांटेजेस से बायोगैस ने उस तो बाद असीं डिस्कस करते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोगैस क्योंकि जे हर एक चीज के फायदे या तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे है। सो वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोगैस की है हाउ सेफ इज बायोगैस, बायोगैस कितनी सेफ है, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोजन, क्योंकि बायोगैस दे विच मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड ते अमोनिया हुंदे आ ये एक्सप्लोसिव हैगियां गैसेस। सेकंड वन इज डिसएडवांटेजेस हैगी आ सिफेक्सिया, Cephexia is a condition of deficient supply of oxygen to the body. Cephexia वो condition है कि जिहदे विच body नू जिहड़ी proper oxygen की supply नहीं हुंदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ। हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग बायोगैस की जो लीकेज हो जाए तो बहुत बैड स्मैल होंगी है क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड होंगी हैगी है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मैल होंगी जिमें रॉटन एग्स होंदियां। इस करके एक्सट्रीम कॉशन इज नैसेसरी वैन वर्किंग विद बायोगैस के नाल जदों काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशनस की जरूरत हैगी है। फोर्थ हैगी है देयर आर नो न्यू टेक्नोलॉजीज येट, there are no new technologies yet to simplify the process and make it abundant and low cost। ठीक है, हाले तक कोई न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं हुई कि बायोगैस प्रोडक्शन की जी प्रोसैस है उन्होंने सिंपलीफाई किया जाए, ठीक है, और उन्होंने मेक इट अबंडेंट कि ज्यादा अबंडेंट मात्रा दे विच ज्यादा मात्रा विच मिले, लो कॉस्ट होवे। इट मीनस लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू सप्लाई फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट पॉसीबल। इस करके हजे तक ये पॉसीबल नहीं हो सकिया है कि लार्ज स्केल ते बायोगैस की प्रोडक्शन की जाए ताकि जी लार्ज पॉपुलेशन हैगी है, बहुत ज्यादा जनसंख्या वधदी होगी, सारिया एनर्जी नीड्स जिहड़ियां उन्होंने फुलफिल किया जाए। सो स्टूडेंट्स ये तो सीगे डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। नाउ द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग was developed by कैटल डंग तो जी बायोगैस प्रोडक्शन हैगी है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी जी किने डेवलप की सी। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग was developed by IARI ने टेक्नोलॉजी डेवलप की सी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम कैटल डंग। IARI की फुल फॉर्म की है इंडियन
एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दूसरी केड़े सीगी KVIC, IARI और KVIC ने बायोगैस प्रोडक्शन दी टेक्नोलॉजी नु डेवलप किया सीगा फ्रॉम द कैटल डंग। KVIC दी फुल फॉर्म हैगी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस फ्रॉम कैटल डंग जिहड़ी सी वो डेवलप कीती सीगी। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। और किहड़े माइक्रोब्स बायोगैस प्रोडक्शन दे विच यूज हुंदे है। मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकॉकस, ठीक है। फिर असी 2 टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट्स डिस्कस किते हैं, फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट एंड फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट। फिर इन्हां दोनों विचों किहड़ा बेटर हैगा या फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट इज बेटर। देन वी डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। आई होप स्टूडेंट्स तुहानू ये लैक्चर जिहड़ा हैगा अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।